start with the homework which I gave you all. I hope आपको homework याद है. Okay. I hope everybody can see my screen. My screen is visible to each one of you all. Yes, ma'am. I think the second and the fifth one was for homework, Bhumika. Yes, ma'am. Okay. We will start with the second one. Any volunteers? मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है. सॉरी. ओके, कोई भी न्यूमेरिकल हो, स्टार्ट कहां से करते हैं? Given. Okay, we start with given and please follow this format. ये format tried and tested है, इसलिए बोल रही हूँ. चलो, what is given? Secondary voltage is 12 volts. That means what? Secondary voltage is 12 volts. That means what? VP दिया है क्या? नहीं. No. Okay, secondary voltage है. ठीक है, तो secondary voltage को मैं क्या लिख सकती हूँ? VRMS. मैंने हमेशा बोला जो भी गिवन में जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज दिया है दैट इज ऑलवेज आरएमएस. आपको पीक वैल्यू नहीं दिया जाता, आपको रूट मीन स्क्वायर ओवरऑल वोल्टेज दिया जाता है. ओके, लोड रेजिस्टेंस इज गिवन 100 ohm. What is to be next point is to find. What is to be found out? VDC, IDC, VP and PIV. And PIV of each diode. Chalo. I will start with the solution directly. I'm not writing the formulae. You can do it in your notebooks. Let us start with the solution because हमने बहुत सारे numericals already देख लिया है. तो today is the last day for numericals है ना, तो मैं directly solution से start करूँगी. चलो. I have given you a table. Table दिया है half wave, full wave and bridge rectifier का, right? You can refer that. अब तक तो वो by heart हो जाना चाहिए था. VDC for half wave rectifier is VP upon. Am I right? VP upon pi. लेकिन VP दिया है क्या directly? नहीं. No. नहीं दिया है. But we know that there is a relation between VP and VRMS. एक relation है, एक formula है, वो भी formula के table में मैंने दिया है, जिसमें लिखा है VP is equal to √2 into RMS. 1.414 into 12. जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या आया VDC भूमिका? 16.98. 16.968. ओके, मैं एक 16.98 लिख लेती हूँ. ठीक है, 16.9. दोनों का सेम आया तो मैं कंसिडर करूंगी कि सही है. ठीक है, नेक्स्ट आई विल इरेज द बोर्ड एंड देन वी विल फाइंड आईडीसी. आईडीसी के लिए क्या करेंगे बताओ? सिंपल ओम्स लॉ. सिंपल ओम्स लॉ जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, लेकिन ये भी मैंने टेबल में दिया है. आईडीसी इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V upon R. I is equal to V by R. यहाँ पे क्या होगा? V के जगह VDC होगा, R के जगह RL होगा, है ना? So 16.98 divided by 100. Am I right? So this is 2 zeros है denominator. VDC की वैल्यू Decimal value 5.96 है ना? दो places left में shift करना है आपको. So 1, 2, 0.169 एम्पियर. आपने सबने यूनिट्स लिखे हैं क्या? यूनिट्स बराबर लिखे ना? VDC के लिए V वोल्ट्स, IDC के लिए एम्पियर. सो व्हाट ऑल हैव VDC अभी तक निकाले नहीं. VDC निकाल दिया बेटा, वंश निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया. VM वैल्यू 5.396 है. अच्छा, ये मैं वो VP निकाले थे. मैं पूछी थी VDC, आप लोगों ने VP बताया मुझे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग VDC ओनली. मैंने एरो दिखाया ना,
सब्स्टिट्यूट इन VDC, उसका आंसर चाहिए था मुझे सब्स्टिट्यूट करने के बाद. हाउ मच इज इट? 5 पॉइंट. भूमिका 5.396. ओके, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम. योर IDC विल चेंज. ठीक है, अब ठीक है. 1 2 2 पोजीशंस 0.05. am I right? Yes, ma'am. अब क्या क्या हो गया? VDC हो गया, IDC हो गया, VP हो गया, PIV बचा है. PIV इजी है. पीक इनवर्स वो अंश समझ रहा है. फॉर्मूला लर्न होगा तो सब इजी है, फॉर्मूला नहीं लर्न होगा तो आई कांट हेल्प इट. PIV of each diode for half wave rectifier is VP. VP. How much is it? Am I right? Yes, ma'am. ठीक है. वंश, साहिल, Yes, करेक्ट ma'am. है. अब सब पैरामीटर्स आ गए. This was asked in exam. ये एग्जाम में पूछा जाता है. डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ये आसान. फॉर्मूले पता रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा. क्लियर है? यस. Yes, ma'am. वन. चलो फास्ट फास्ट करेंगे because I have to start filters today. Fifth one, in a bridge rectifier turns ratio, and I really appreciate, 1 minute, I really appreciate Vansh. He was not there in last year's last session, I think, you know, but he has done the homework. Vansh, very good, a very good appreciation for you. Thank you, ma'am. In a bridge rectifier, turns ratio of transformer is 10:1. Chalo fatafat. Given turns ratio. चलो, टर्न्स रेशियो दिया गया है. मैंने ये आपको 2 मेथड में बताए थे. आपको जो मेथड यूज करना है, आप पहले RMS में कन्वर्ट करो प्राइमरी के वोल्टेज को, फिर सेकेंडरी फाइंड आउट करो, या फिर सेकेंडरी फाइंड आउट करो और फिर टोटल को RMS में फाइंड आउट करो. कैसे भी चलेगा. ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा एक टर्न्स रेशियो वाला डाला क्योंकि वो टाइप का एक ही किया था हमने, है ना. चलो, टर्न्स रेशियो इज 10:1, है ना. हमेशा टर्न्स रेशियो जब देते हैं तब ट्रांसफार्मर कैसे होता है? प्राइमरी पहले आता है, सेकेंडरी बाद में आता है ना, तो वो वैसे ही दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज NP:NS. What do you mean by NP? Number of turns in primary, number of turns in secondary. ठीक है. 10:1. ठीक है. Primary is connected to 230 volt 50 hertz. Can I write V primary? ऐसे लिखो, क्योंकि VP नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि VP अपना मैक्सिमम वोल्टेज को भी हम VP ही बोलते हैं, है ना, इसलिए 230 volts. Okay. Next. What else is given? ठीक है, उतना ही दिया. Fine. What is to be found out? VDC and PIV. PIP. Yeah. Correct? Sure. Let us start. Turns ratio is given. Primary voltage is given. But for VDC, what do we want? We want VP. VP, peak voltage of secondary. Peak voltage of secondary. कहीं पे भी secondary voltage दिया है क्या प्रॉब्लम में? कहीं दिया है? नहीं. तो सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है. कुछ रिलेशन है क्या टर्न्स रेशियो और प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में? कुछ रिलेशन है? हाँ. Yes, ma'am. What is the relation? Secondary voltage, I will write V. ठीक है. Secondary voltage is V primary into NS upon NP. ठीक है. V प्राइमरी दिया है क्या? V प्राइमरी दिया है. वोल्टेज ऑफ प्राइमरी दिया है. हाँ दिया है. लेकिन मैंने क्या बोला था? जो प्रॉब्लम में डायरेक्टली वोल्टेज देते हैं वो कभी यूज करते हैं क्या हम डायरेक्ट? नहीं. दैट इज द RMS वैल्यू. आपको क्या चाहिए? पीक वैल्यू चाहिए, है ना, है ना. तो यहाँ पे भी मैं पीक वैल्यू यूज करूंगी तो ही मुझे V सेकेंडरी का पीक मिलेगा. समझ में आया? समझ में आया? इसी को मैं VP भी बोलूंगी ना, इसी को मैं VP भी बोलूंगी. ठीक है. तो 230 वोल्ट्स है, लेकिन 230 वोल्ट्स में डायरेक्टली लूंगी क्या? नहीं. That is the RMS value. I want the peak value. So I will do √2 into
230. मैं डायरेक्ट लिखूं तो चलेगा क्या? Yes, ma'am. चलेगा? Into ns upon mp, that is 1 upon 10. Yes or no? 1 upon 10. Yes, ma'am. क्या किया? 0 0 कैंसिल, √2 into 23 क्या आता है आंसर? बीपी भूमिका किया है क्या? 1.414 into 23. Can you please quickly tell me? मैं करूँ क्या? 32.52. 32.52. भूमिका, is this right? आपको भी इतना आया? Yes, ma'am. Into 23, 32.5. करेक्ट. ठीक है. अब VP आ गया, VDC फाइंड कर सकते हैं क्या? Why not? VDC for bridge rectifier 2 VP upon pi. 2 VP upon pi. आंसर बताओ मुझे जल्दी. 20.71 आया क्या? 20.71 आ रहा है मेरा. आया क्या? 20.71. Ma'am, 20.68 आ रहा. ठीक है. 20.68 VDC आ गया सबका? Yes, ma'am. PIV. चलो PIV now pay attention. PIV bridge rectifier. हाँ, ये एक एडवांटेज है. तो आप ऐसे नहीं समझना फुल वेव जैसा ही है क्या PIV? नहीं, PIV इसका एडवांटेज वाला PIV है. PIV कितना है ब्रिज रेक्टिफायर का? VP. एब्सोल्युटली करेक्ट. VP. अब मुझे याद नहीं कितना था वो. जो भी था आंसर दैट विल बी द आंसर. दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. इसमें 4 मार्क्स का स्टेप मार्किंग कहाँ होगा? नंबर 1 सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करने के लिए, नंबर 2 VDC फाइंड करने के लिए, नंबर 3 PIV ऑफ ईच डायोड, और नंबर 4 वो टर्न्स रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे. इसमें है आपका स्टेप मार्किंग. समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है? इधर तक क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम आए आप कर सकते हो अभी आराम से. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है ना. अभी एक टाइप का है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, एक प्रॉब्लम है. वो ना मैं कल बताती हूँ आपको. मुझे वो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है एक्चुअली. आई जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग. Stop sharing my screen. So the next topic in after rectifiers. अभी पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में मुझे बताओ इसके बाद क्या आता है? पहले क्या आता है? ट्रांसफॉर्मर्स, है ना. ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या आता है? रेक्टिफायर. प्लीज रिकॉल द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई. ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स. आफ्टर रेक्टिफायर्स व्हाट कम्स? Filter. है ना. फिल्टर. क्यों? why do we need a filter? because रेक्टिफायर का आउटपुट मुझे क्या फाइनल, मेरा टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट इज अ DC वोल्टेज, DC सप्लाई फॉर माय गैजेट्स. so DC supply, am I getting DC supply after rectifying output? no, I'm not getting completely DC, है ना. उसमें AC कंपोनेंट है. वो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, रेक्टिफायर का आउटपुट तो पल्सेटिंग DC है. पल्सेटिंग है ना. ये AC जैसा दिख रहा है ना. DC जैसा स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं. तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा फिल्टर. ठीक है. फिल्टर क्यों लगाना है? फिल्टर इसलिए लगाना है टू रिमूव ऑल द रिपल्स इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर. व्हाट इज रिपल? मैंने 1000 टाइम्स एक्सप्लेन किया होगा. क्या है रिपल? इट इज द AC कंपोनेंट, अनवांटेड AC कंपोनेंट. अब ये वांटेड है क्या? आई मीन, डू आई नीड AC कंपोनेंट इन माय प्योर DC सप्लाई? नो. ये स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे, लेकिन स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है. तो ये चेंज हो रहा है. तो ये धीरे ऊपर नीचे भी अगर हो रहा है तो वो भी मुझे नीचे. आई नीड अ स्ट्रेट स्टेबल रेगुलेटेड DC सप्लाई. so this unwanted signal, unwanted AC component in this signal is known as the ripple. समझ में आया? एंड ये रिपल को निकालना is the function of a filter. समझ में आया? Why filters are needed? This was asked in July 2018 paper. Why are filters needed? पूरा theory लिखना है आपको. ठीक है.
It is to remove the AC or the ripple content so that we don't have any fluctuations from the output of the rectifier. इसलिए rectifier के output पे लगाया है filter, है ना? समझ में आया? I'll ask you a question. ठीक है? कौन सा I mean amount of ripple किस में ज्यादा होगा? Half wave rectifier में या full wave rectifier में? Half wave rectifier, I hope you know the output waveform is like this. We have zeros in between. There is nothing in the negative half cycle पे zero आता है. This is the full wave rectifier. किसमें ripple ज्यादा होगा? वो factor को half wave rectifier. Correct, Vansh. वो factor को बोलते हैं ripple factor. समझ में आया क्या है ripple factor? एक नंबर है, it's a number which indicates how much ripple, how much unwanted AC signal is there in that fluctuating DC. And it is more for half wave rectifier than for full wave rectifier. सही बात है ना? Full wave rectifier at least मुझे pulsating DC तो मिल रहा है बीच में. यहाँ पे half wave में तो पूरा ही zero है. The signal is zero in between, है ना? I have only this much. Right? So it takes more effort to raise the signal till here. Over here, I at least have pulsating DC continuous. Right? So therefore, the ripple is more in half wave rectifier. समझ में आया? Clear है? आपको factors याद रखने हैं. Ripple factor of half wave rectifier is 1.21. Ripple factor, those who don't have textbooks, please note this down. Ripple factor of half wave rectifier is 1.21 and ripple factor for full wave rectifier is 0.482. 0.482. Clear? So half wave rectifier, it is how much there? 1.2 I said, no? 1.21, 0.482. It's a ripple factor. Clear? Yes? Fine. Yes, ma'am. ये जो रिपल जो पल्सेटिंग डीसी है इसको फ्रीक्वेंसी होगा क्या? अच्छा, डीसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी होता है क्या वो बताओ मुझे. डीसी सिग्नल स्ट्रेट लाइन होता है. इज देयर एनी फ्रीक्वेंसी? नो, फ्रीक्वेंसी इज एब्सेंट. फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी सिग्नल. एसी सिग्नल्स में होता है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह. राइट? डीसी सिग्नल इज स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी. Frequency is zero, but since this is a ripple, it will have frequency. Clear है? Yes or no? तो कुछ फॉर्मूले हैं इस रिपल केस में. प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूले of ripple factor. I told you, know what is ripple factor. So how do you determine that ripple factor? How much is ripple is there in my rectifier output? That can be found out. Please write full form. Ripple factor is RMS value of wave, RMS value of wave upon average DC value. Upon average DC value. ओके और अगर मुझे बताना है कि देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ चावल है मेरे पास, ठीक है, रॉ राइस, उसमें स्टोन्स है, कुछ इम्प्योरिटीज है, स्टोन्स है, मैंने क्लीन किया है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ वो गंदगी है वो राइस चावल में. अगर मुझे परसेंटेज बताना है या फैक्टर बताना है तो मैं परसेंटेज ज्यादा ठीक रहता है ना मुझे. चलो ये एक बोरा चावल मैंने आपको दिया, इसका 10% पूरे पत्थर है, बाकी का राइस है, बाकी का नॉर्मल राइस है. तो आपको एक अंदाजा आता है कि कितनी गंदगी है उसमें. 10% पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है एक बोरे राइस में. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? परसेंटेज में बताओगे तो आपको समझ में आएगा इजीली कि कितनी इम्प्योरिटीज है. सेम चीज है यहाँ पे. डीसी है सिग्नल, डीसी सिग्नल चाहिए, लेकिन उसमें कितना परसेंट एसी है, कितनी परसेंट गंदगी है. एसी चाहिए आपको, नहीं चाहिए ना, तो कितना परसेंट रिपल है. That ripple can be found out by percentage, finding out the percentage.
कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिपल फैक्टर इनटू 100। कोई भी नंबर का परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं? इनटू 100 करके, है ना? तो फिर मैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपके रेक्टिफायर आउटपुट का क्या है, हाउ मच परसेंटेज रिपल, तो मैं बता सकती हूँ उनको, है ना, कि 10% है या 20% है या जो भी। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. वो परसेंटेज मुझे पता चलेगा कि पूरे सिग्नल में कितने परसेंटेज गंदगी है, एसी कंपोनेंट है, वो जो मुझे निकालना है फिल्टर लगाने के बाद, उसके हिसाब से मैं फिल्टर लगाऊंगी। सही है? राइट? Yes, ma'am. ओके, सो वो एसी कंपोनेंट कितना है उसके हिसाब से मैं फिल्टर डिसाइड करूंगी। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा रिपल्स है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगेगा। बस 1% या 2% रिपल है तो आई विल नॉट मे बी जस्ट यूज अ वेरी माइनर फिल्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यही प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मींस गलती को सुधारना। तो जो एसी कंपोनेंट गलती से आया है उसको सुधारना इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंट और कितना अच्छा मेरा आउटपुट निकलेगा। ठीक है? और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपको पता है, मैंने एफिशिएंसी दिया है टेबल में। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना है एफिशिएंसी? 40.6%। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना है एफिशिएंसी? वो वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखा 81.2%। 0.2%। ठीक है? तो मतलब क्या है ये एफिशिएंसी? कितना डीसी पावर मिल रहा है मुझे वो एसी इनपुट से। मैंने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया था ना, तो वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज में से कितना मिल रहा है? ज्यादा ही डीसी मिल रहा है तो ज्यादा एफिशिएंट हो आप, ज्यादा अच्छा है, इसलिए 81.2। उतने 230 वोल्ट्स में मुझे डीसी बहुत कम मिल रहा है, इसलिए आपका एफिशिएंसी कम है। इट्स नॉट गुड, इट्स ओनली 40.6 इन हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आया आपको? सब समझ में आ रहा है कंसेप्ट कैसे लिंक करना है? क्लियर है? फिल्टर मतलब एसी कंपोनेंट निकालना। मुझे एसी नहीं चाहिए क्योंकि चैप्टर का नाम है डीसी सप्लाई, पावर सप्लाई डीसी। डीसी चाहिए, एसी नहीं चाहिए। तो एसी मेरे लिए इम्प्योरिटी हो गया, गंदगी हो गया, वो निकालना है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? फिल्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। Actually there are many subtypes also, but basically आपके इसमें only 3 to 4 types ही है। कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर। ठीक है? फर्स्ट वेरी बेसिक फिल्टर इज कैपेसिटर फिल्टर। बहुत इजी है और बहुत बेसिक है कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है? अभी कैपेसिटर क्यों फिल्टर जैसे करता है? क्योंकि कैपेसिटर का एक खासियत यह है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इट पासेस ओनली एसी। कैपेसिटर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डीसी को ब्लॉक करता है। क्यों ब्लॉक करता है डीसी को? क्योंकि आपने रिएक्टेंस लर्न किया होगा क्लास 11th में। रिएक्टेंस कैपेसिटर का क्या है? देखा ये कहीं रिएक्टेंस? मैंने बोला था Yes, रेजिस्टेंस, भूमिका भाग रही है, भूमिका को मैं पीछे से चोटी खींचती हूँ, लेकिन वो भाग रही है, लेकिन उसकी चोटी खींच रही हूँ मैं। दैट इज अ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, राइट? उसको आगे नहीं जाने देती हूँ। तो ये जो है डीसी कंपोनेंट में F0 रहता है। मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी 0 है डीसी में, तो 1/0 हो गया ये पूरा। 1/0 मतलब इंफिनिटी, है ना? V इज इक्वल टू IR है। IR मतलब ये XC, तो I इज इक्वल टू V बाय R। V बाय इंफिनिटी 0, मतलब 0 करंट इज फ्लोइंग, इसलिए डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं होता। इट ब्लॉक्स ऑल डीसी बट इट टेक्स ऑल द एसी। सब एसी मेरे पास आ जाओ, ऐसे बोलता हूँ। तो अच्छी बात है ना। अगर मैं ये मेरे रेक्टिफायर के आउटपुट में डाल दूंगा तो वो सब एसी खींच लेगा, गंदगी सब खींच लेगा और डीसी को जाने देगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डीसी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो अच्छी बात है ना, ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रहा है सर्किट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस? यस और नो? तुम लोग हाँ या ना नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं समझे। yes, Yes, ma'am. ma'am. तो प्लीज ड्रॉ दिस। दिस इज द इनपुट आई एम गेटिंग फ्रॉम रेक्टिफायर। ठीक है? कैपेसिटर कनेक्ट किया है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे।
सिर्फ 5 मिनट बचे हैं. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज. कुछ नहीं किया मैंने. रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर, कोई भी रेक्टिफायर, उसका आउटपुट जो है ना वी आउट, उसको मैंने उसके आउटपुट पे मैंने ये कनेक्ट कर दिया, बस. कुछ भी नहीं किया मैंने. ठीक है. अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो मैं रेक्टिफायर ही बना देती हूँ यहाँ पे. थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगी. फुल वेव रेक्टिफायर बनाया मैंने, चलेगा क्या? ठीक है क्या? यस मैम. ठीक है. फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्ट किया मैंने. आउटपुट हम जनरली आरएल पे लेते थे, अभी आरएल के बजाय मैं लगा रही हूँ कैपेसिटर. चलेगा? हाँ या ना? ठीक है ना? यस. D1 D2 वगैरह लिख देना. ठीक है. तो अब क्या करेगा ये? नाउ ओवर हियर आई एम गेटिंग ऐसा सिग्नल आ रहा है मेरा, है ना? आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज लाइक दिस. एसी है कंपोनेंट, तो मैंने क्या बोला? कैपेसिटर takes in all the AC and leaves the DC. It is not interested in DC signal. ठीक है. तो ये सिग्नल जैसे ही इधर से आता है, all the AC signal, यहाँ पे ग्राउंड है, all the AC signals are taken by the capacitor and it is given to ground. और क्या पास करता है वो? Only DC signal is passed. Correct? Therefore, we get something known as pulsating DC. पूरा DC मिल जाता है. पूरा मतलब पूरा भी नहीं, जस्ट स्मॉल कैपेसिटर है ना, लेकिन फिर भी 90% या 80% जितना भी हो सकता है एसी कंपोनेंट वो ले लेता है, ग्राउंड पे दे देते हैं, बाकी का डीसी वो पास ऑन करता है. दैट इज व्हाट वी वांट, है ना? एसी को निकालना ही अपना टारगेट है फिल्टर का. दैट इज हाउ कैपेसिटर एक्ट्स एज अ फिल्टरिंग डिवाइस. समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं देता भाई, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है वो, है ना? वो इतना बड़ा एफिशिएंट नहीं है, छोटा सा एक कंपोनेंट है. तो वो क्या करता है? ये आपका सिग्नल था, ये आपका सिग्नल था, राइट? तो वो जैसे सिग्नल रीड करता है वो चार्ज होता है. फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल चार्ज होता है कैपेसिटर, फिर डिस्चार्ज होता है. चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है. तो उसका आपका आउटपुट सिग्नल ऐसे दिखता है. चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज. स्ट्रेट लाइन है क्या? तकरीबन, मतलब कि नहीं है स्ट्रेट लाइन, बट इससे बेहतर है. इससे बेहतर यस है. मैम. थोड़ा तो भी Yes, स्ट्रेट ma'am. लाइन जैसे पास जा रहा है वो. दिस इज हाउ इट फिल्टर्स. वो एसी को निकाल दिया, जितना वो उसको वो कर सकता है उतना काम उसने किया है. एंड दिस इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी. रेक्टिफाइड आउटपुट, उसमें जितना रेक्टिफाई हो सकता है, जितना फिल्टर कर सकता है, वो उसमें कर दिया. समझ में आया? क्लियर? हैव Yes, ma'am. मैसेज किया? यू विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. ठीक है. कोई भी रेक्टिफायर ले सकते हो आप. ब्रिज लेना है ब्रिज लो, फुल वेव लेना है फुल वेव लो, हाफ वेव लेना है हाफ वेव लो. एंड यू विल कनेक्ट द कैपेसिटर एंड लोड के अक्रॉस वोल्टेज दिखा देना. एंड वो जो भी मैंने अभी बोला वो सब आपको थ्योरी में लिखना है. And output waveform you will draw. Whenever you draw the output waveform, please remember to write the or label the x and y axis. Don't forget this. So this is V output against time. ये एक मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे. मैं भी जल्दी जल्दी में ड्रॉ करती हूँ. देखो यहाँ पे भी मैंने एक्सिस को कुछ लेबल नहीं किया. ऐसे मत करो. प्लीज लेबल द एक्सिस wherever possible. यहाँ पे भी नहीं किया है. तो ये इसका आउटपुट है, तो मैं इधर VO1 लिखूंगी, इधर VO2 लिखूंगी. चलेगा ना? क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू डू इंडक्टर कैपेसिटर, RCLC. हो सकता है तो फिल्टर्स खत्म कर देंगे फ्राइडे को. Have I made myself clear? So today's homework is try to find out more numericals. You yourself find numericals because we have solved almost all types. Find the numericals and grab yourself textbooks. I'm sure the shops are open now. At least if you can send or ask your friends, those who have got textbooks, to send the screenshots.
Please read this and learn this part. जो जो मैं सिखा रही हूँ वो दिन वो learn करके रख दो. You will be sorted. Clear? The meeting is going to Yes, end ma'am. now. ठीक है? The time is up. We will meet on Friday. Thank you so much. Have a good day.